کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں خوشامدید، شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ ملتان میں زیر تعمیر عمارت گر گئی، ملبے تلے دب کر ایک مزدور جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہو گئے۔ پسند کی شادی سے انکار، گجرانوالہ میں نوجوان نے فائرنگ کر کے دوشیزہ کو قتل کر دیا، پولیس کی کارروائی، ملزمان گرفتار۔ حاصل پور میں 3 ماہ قبل سیاسی کارکن کا قتل، تاحال قاتل گرفتار نہ ہو سکے، ورثاء پولیس کے خلاف سراپا احتجاج، قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اوکاڑہ میں نجی شوگر مل کے ملازمین کا احتجاج اور دھرنا، 5 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے گھروں میں نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ عید سے قبل واجبات ادا کیے جائیں۔ احمد پور شرقیہ کے یوٹیلیٹی سٹورز بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام، چینی مارکیٹ اور رمضان بازار سے بھی مہنگے داموں فروخت، عوام نے دیگر اشیاء پر فی کلو 2 سے 3 روپے کا ریلیف بھی مسترد کر دیا۔ ماہ رمضان رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ، گجرانوالہ میں مخیر حضرات کی جانب سے مستحق افراد میں راشن اور عید کے لیے نئے کپڑے تقسیم کیے گئے۔ خیرپور میں پولیس کا سرچ آپریشن، 5 اشتہاری ملزمان گرفتار، ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور منشیات بھی برآمد کر لی گئیں۔ خانپور محل کے غریب محنت کش کی بیٹی کے دل میں سوراخ، علاج کے لیے پیسے بھی نہیں، بے بس والدین کی حکومت اور مخیر حضرات سے بیٹی کا علاج کرنے کی اپیل۔ کے پی پولیس کی ہڑتالی ینگ ڈاکٹر سے نمٹنے کی سخت حکمت عملی، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے ہڑتالی ڈاکٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن، کئی گرفتار، پولیس کے لاٹھی چارج سے کئی ڈاکٹر زخمی بھی ہوئے۔ اور صحبت پور کی ضلعی انتظامیہ فعال ہو گئی، ماہ رمضان کا آدھا مہینہ گزرنے کے بعد سستا رمضان بازار قائم کر دیا گیا، جہاں عوام الناس کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف ہے۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے۔ ملتان میں زیر تعمیر عمارت گرنے سے ایک مزدور جاں بحق اور 5 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں ملبے تلے نکال لیا گیا۔ پل شہری لال کے قریب زیر تعمیر عمارت کی چھت گرنے سے 6 مزدور ملبے تلے دب گئے، ایک مزدور کی لاش نکالی گئی ہے، باقی 5 کو زخمی حالت میں نکالا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کا عملہ موقع پر پہنچ گیا، جنہوں نے ملبہ ہٹا کر مزدوروں کو باہر نکالا اور انہیں نشتر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں 2 مزدوروں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ زخمیوں میں اشرف، رضوان، ندیم اور شریف شامل ہیں۔
गुजरांवाला में पसंद की शादी से इनकार पर नौजवान ने फायरिंग करके दोशीजा को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। ततलियाली में पसंद की शादी से इनकार पर अवैस नामी नौजवान ने फायरिंग करके दोशीजा को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने महल्लेदार रूबी को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, जबकि रूबी के वालिदैन ने बच्ची का रिश्ता उसके मामूजाद शहजाद से तय कर दिया था। इसी रंजिश पर मुलजिम ने घर में दाखिल होकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में रूबी मौके पर ही दम तोड़ गई। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुलजिम अवैस को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। 3 रोज कबल लापता होने वाले शोरकोट के रिहायशी की लाश मिल गई। रेस्क्यू रजाकारों ने लिंक नहर से लाश बरामद की है। मुतवफ़ी को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। शोरकोट के नवाही इलाका हवेली बहादुर शाह का रिहायशी खावर अब्बास 3 रोज कबल अचानक लापता हो गया था। अहले खाना ने थाना में रिपोर्ट भी जमा करवा दी थी। वरसा को खदशा था कि शायद वो नहर में डूब गया हो। मुल्तान से खबर है। मुल्तान शहर और गिरदो नवाह में चिकन पॉक्स का मर्ज फैलने लगा है। मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पतालों में गुज़िश्ता रोज चिकन पॉक्स से 7 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल में जिला भर से मरीजों की आमद का सिलसिला जारी है और मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ एजाज तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, आगाह कीजिएगा कि इंतजामिया की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई गई है इस मर्ज से निपटने के लिए? जी, चिकन पॉक्स का मर्ज जो है वो आए रोज बढ़ता जा रहा है और इसकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। निश्तर अस्पताल मुल्तान में चिकन पॉक्स के मरीजों के लिए एक अलहदा वार्ड मखसूस कर दिया गया है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि उस वार्ड में अद्वियात जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से मरीज और उनके लवाकिन खासे परेशान है और उन्हें अद्वियात जो है वो बाहर जो है मार्केट से खरीदनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर गुर्बत बहुत ज्यादा है और अद्वियात लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है, इसलिए वो बहुत परेशान है और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुदारा चिकन पॉक्स मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एजाज तरीन हमारे साथ मौजूद थे। रहीम यार खान में यंग डॉक्टर्स मुतालिबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज हैं। उनका ये मुतालिबा है कि साथी डॉक्टर को फिल फौर रिहा किया जाए। बसूरत दीगर ऑपरेशन थिएटर, आउटडोर समेत इमरजेंसी में भी काम बंद कर दिया जाएगा। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। जावेद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा मजीद क्या कहना है इन डॉक्टर्स का? जी बिल्कुल, रहीम यार खान में यंग डॉक्टर्स की जानिब से अपने साथी डॉक्टर आई सर्जन जो कि जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है महकमा इंसदाद रिश्वतखानी की तरफ से 6 रोज कबल, उन पर इल्जाम है कि उन्होंने एक शहरी से 15,000 रुपए रिश्वत जो है वो मुलाजमत देने के लिए ली थी, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर यंग डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि उन पर इल्जाम लगाया गया है और ये सारा सियासी हवाले से किया जा रहा है, जबकि वो इस हवाले से वो जो है वो बिल्कुल क्लियर हैं। इस हवाले से आज आउटडोर और उन्होंने इमरजेंसी जो थी वो बंद रखी है और अपने मुतालबात के लिए उन्होंने वहां नारेबाजी की, उन्होंने जुलूस निकाला और उन्होंने दिया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ अकरम जफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम, आगाह कीजिएगा, कीमतों की ज्यादा होने की वजह से आवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं अहमद शरिया के एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो अशिया फरोख्त की जा रही है, जिसमें चीनी है, दालें हैं, चावल है, साबुन है, चाय है, इन अशिया पर 2 से 3 रुपए किलो का रिलीफ दिया जा रहा है। सिर्फ ऑयल और घी पर जो है 10 रुपए किलो का रिलीफ दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पर जो अशिया फरोख्त की जा रही हैं, हम उनके म्यार की बात करें तो कुछ अशिया का जो म्यार है बहुत अच्छा है और कुछ अशिया का जो म्यार है वो इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में मुकर्रर करदा निक से ज़्यादा अशिया रेट पर फरोख्त की जा रही हैं और मार्केट कमेटी और प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है रेट कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही हैं। यूटिलिटी स्टोर भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नजर आते हैं। हमारे साथ मौजूद थे अकरम। आप आगे बात करेंगे हासिलपुर की, जहां पर 3 माह गुजरने के बाद भी सियासी कारकुन के कातिलों के खिलाफ खातिर खा कार्रवाई ना हो सकी। वरसा का ये कहना है कि पुलिस ने असल मुलजिम पकड़कर छोड़ दिए हैं। जब तक मुलजिमान गिरफ्तार नहीं होते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। हासिलपुर थाना काईपुर की हदूद बस्ती अराइया में
नून लीग के कारकुन मोहम्मद इस्माइल को कत्ल हुए 3 माह गुजर गए। मकतूल के कातिलों को गिरफ्तार तो किया गया मगर 2 माह बाद छोड़ दिया गया। मकतूल मोहम्मद इस्माइल के मुर्सा ने अहले इलाका के साथ पुलिस की हठधर्मी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इनका कहना था कि पुलिस ताउन नहीं कर रही। हाजी इस्माइल दे कातलां नूं बिल्कुल गिरफ्तार किया जावे। वो जो बिल्कुल खुलेआम फिरदे हैं और धमकियां दे रहे हैं। असा और जी पुलिस है पी वो बिल्कुल ही कोई काम नहीं कर रही। डॉक्टर अल्ताफ ने साढ़े भाई को 15-16 लाख रुपया लिया से, ठीक है ना। भाई मेरे नु घर बुला के लड़की का चक्कर दे थे, घर बुला के भाई मेरे नु कत्ल किया गया। इन्होंने ये भी कहा कि पुलिस सियासी टाउट माफिया के साथ मिली हुई है। अगर हमारे मुल्ज़िमान फिल फौरन गिरफ्तार न किए गए तो हम एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। तूल के वर्षा औरतों और बच्चों ने जनाब वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से हाथ जोड़ कर इल्तिजा की है कि हमारे बेटे, भाई और वालिद के कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। जबकि पुलिस का कहना है कि हम मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ साजिद चौधरी, वक्त न्यूज, हासिलपुर। और अब खबर शामिल करेंगे सादिकाबाद से, जहां इलाका जमालदीन वाली में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ मकीन सरापा एहतजाज बन चुके हैं। सताए अवाम ने वापदा दफ्तर के सामने धरना दिया। उनका ये कहना है कि शदीद गर्मी में गैर इलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से भी तजावुज कर चुका है और इस हवाले से इलाके के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज बन चुके हैं। सियालकोट के शहर समरियाल में संगे बुनियाद रखने के बावजूद 12.5 साल बाद भी हेल्थ डिस्पेंसरी को मिनी अस्पताल नहीं बनाया जा सका। सरकारी डिस्पेंसरी को 2 शोबे खस्ता हाली का शिकार होकर तबाह हो चुके हैं, जबकि अद्वियात की भी शदीद किल्लत है। वजीराबाद मेन हाईवे पर समड़ियाल में खिस्ता हाली का शिकार सरकारी डिस्पेंसरी का क्याम 40 साल कबल अमल में लाया गया था और इसे 12.5 साल कबल 30 नवंबर 2004 को उस वक्त के जिला नाज़म मियां नईम जावेद ने मिनी अस्पताल का दर्जा दिया था और इसका संगे बुनियाद भी रखा था, लेकिन आज तक इसे मिनी अस्पताल न बनाया जा सका है। 2004 में जो है मिनी हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया था, लेकिन अभी तक उसको पाया तक मील तक नहीं पहुँचाया जा सका। इमारत तो जो है काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो इसको जो है ना बाहर करके नहीं इसके हॉस्पिटल बनेगा, मिनी हॉस्पिटल। सरकारी डिस्पेंसरी के 2 शोबे तबाह व नकारा हो चुके हैं और छतें भी खिस्ता हाली का शिकार हैं। अद्वियात की किल्लत है और डॉक्टर्स व अमला भी कम है। सारे अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, अच्छी लेडी डॉक्टर होनी चाहिए बच्चों के लिए। बच्चे ज़्यादा लोग लेके आते हैं टीके लगाने के लिए। खिस्ता हाली का शिकार सरकारी डिस्पेंसरी की तरफ हुकूमत तवज्जो दे तो ये मिनी अस्पताल बन जाएगा और डॉक्टर व अमला की तादाद बढ़ने से हजारों मरीजों को फायदा होगा। माह सयाम में इफ्तार दस्तरखान लगाकर मुखय्यर हजरात बहुत सी नेकियां समेटने में मसरूफ हैं, जिससे माशरे में मोहब्बत और भाईचारे को भी फरोग मिलता है। देखते हैं रहीम यार खान से जावेद अब्बास चौधरी की ये रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और फजीलतों का महीना। इस माह मुकद्दस में रहमतें और नेकियां समेटने के लिए बहुत से जरिए इस्तेमाल होते हैं, जिनमें एक जरिया अफ्तार दस्तरखान भी है। और इस माह मुकद्दस में मुखय्यर हजरात, समाजी तंजीमें और घरों में अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है। अफ्तार दस्तरखान जहाँ रहमतें समेटने का जरिया है, वहीं इससे मोहब्बत और भाईचारे को भी फरोग मिलता है। जब रमजान मुबारक से हम ये स्टार्ट करते हैं और रमजान मुबारक के एंड तक ये चलता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग रोजा अफ्तार करते हैं। अफ्तार दस्तरखान घरों में सजे या बाजारों में ख्वाहिश यही होती है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। शहरियों ने, समाजी तंजीमों ने रहीम यार खान में बड़े पैमाने पर अफ्तार दस्तरखान सजाने का इंतजाम कर रखा है, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में मुकम्मल खामोश रही और किसी मकाम पर अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम न किया गया, जिससे मजदूर तबका को अफ्तारी की सहूलत मिल सकती। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अफ्तारी वास्ते कुछ नहीं कर रही थे। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਖੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ इंतजाम किया है। अफ्तार दस्तरखान जहाँ रहमतें समेटने का जरिया है, वहीं मिल बैठकर दूसरे के करीब होने, दुख दर्द बांटने और मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देने का जरिया भी है। कैमरामैन हमजा गफार के साथ जावेद चौधरी, वक्त न्यूज, रहीम यार खान। गुजरांवाला में महंगाई से परेशान मुतवस्सत घरानों के माह रमज़ान की बरकतें समेटने और ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए मुखय्यर हजरात की जानिब से राशन और ईद के कपड़े तकसीम किए गए।
رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں احسار کے جذبے کے تحت مخیر حضرات کی جانب سے رمضان کے دوسرے عشرے میں غریب گھرانوں میں راشن اور عید کے نئے کپڑوں کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گوجرانوالہ میں بھی مخیر حضرات کی جانب سے ایسے غریب گھرانے جو مہنگائی کی وجہ سے اپنے بچوں کی خوشیاں پوری نہیں کر سکتے، ان میں راشن اور نئے کپڑے تقسیم کیے گئے، جس پر مستحق افراد نے خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا بھی مشکل ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ اس دنیا میں مخیر ذرات ہیں جن کے تعاون سے یہ سارا نظام ہمارا چل رہا ہے۔ اللہ دے نیک بندے نے، انہوں نے کپڑے دیتے نے، آٹا دیتا ہے، راشن دیتا ہے۔ اللہ پاک انہوں نے تندرستی دے تے ہور زیادہ صحت دے۔ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। مخیر حضرات کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کی طرح عام دنوں میں دل کھول کر غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ خیرپور میں پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران 5 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور منشیات بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ خیرپور میں پولیس نے خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی کی اور منشیات فروش سمیت 5 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ سرچ آپریشن کے دوران گرفتار کیے گئے ملزمان پولیس کو کئی مقدمات میں مطلوب تھے، جن سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق علاقے سے جرائم کے خاتمے تک ملزمان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خانپور مہر کی غریب محنت کش کی بیٹی کے دل میں سوراخ ہے، لیکن علاج کے لیے پیسے نہیں۔ غریب والدین نے مخیر حضرات سے مالی امداد کی اپیل کی ہے۔ خانپور مہر کی بستی میرانی کے رہائشی غریب محنت کش کی بیٹی دل کے عارضے میں مبتلا ہے، جس کے باعث وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے۔ غریب باپ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے علاج کے لیے سندھ بھر کے اسپتالوں کے چکر لگا لگا کر تھک چکا ہے، مگر علاج مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ بے بس ہے۔ والدہ کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو دوسرے بچوں کی طرح ہنستے کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، لیکن غربت کی وجہ سے ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ غریب ماں باپ نے حکومت اور مخیر حضرات سے بیٹی کا علاج کرانے کی اپیل کی ہے۔ اور اب کچھ خبریں شامل کریں گے۔ بلوچستان سے بات کریں گے صوبت پور کی، جہاں پر ضلع انتظامیہ فعال ہو گئی ہے۔ ماہ سیام کے آغاز میں تو یاد نہیں آئی، لیکن آدھا مہینہ گزرنے کے بعد سستا رمضان بازار قائم کر دیا گیا ہے، جہاں عوام الناس کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف ہے۔ مزید جانیں گے جبار عمرانی کی اس رپورٹ میں۔ دیر آیت درست آیت، ضلع انتظامیہ صوبت پور کو روزہ داروں کا خیال آ ہی گیا۔ ماہ سیام میں سستا بازار کا انعقاد، اشیاء خرد و نوش پر 20 سے 50% رعایت سے عوام کو بہتر ریلیف ملا۔ سستا بازار میں خریداروں کی رش دیدنی تھی۔ سب سے زیادہ ریلیف مرغی کے گوشت اور برف پر 50% ہونے کی وجہ سے خریداروں کی زیادہ رش رہی۔ سستا بازار کے معائنے کے لیے آئے ہوئے ڈپٹی کمشنر صوبت پور آغا شیر زمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس وقت جو ریٹس ہیں وہ کچھ گوشت کے بھی اور کافی چیزوں کے بھی نیچرلی کچھ زیادہ ہیں، اور وہ سپلائی ڈیمانڈ اور باقی چیزوں کی وجہ سے، جس پہ ہم نے خصوصی طور پہ سبسڈی ضلعی انتظامیہ منسپل کمیٹی اور اپنی طرف سے دی ہے۔ صوبت پور کے دیگر شہروں میں ماہ سیام میں سستا بازاروں اور پراس کنٹرول کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین تنویر ترین کے ہمراہ جبار عمرانی، وقت نیوز صوبت پور۔ ڈیرہ اللہ یار میں یتیم بچوں کے عالمی دن کے سلسلے میں فلاحی ادارے کی جانب سے عید راشن تقسیم کیا گیا۔ جعفر آباد کے 250 یتیم بچوں نے راشن ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ جعفر آباد کے ہیڈ کوارٹرز ڈیرہ اللہ یار میں نجی اسکول میں یتیم بچوں کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک فلاحی ادارے کی جانب سے 250 یتیم بچوں میں عید راشن تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ یتیم بچوں سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عارفین سپورٹ پروگرام کے سوشل آرگنائزر جماعت اسلامی جعفر آباد کے سابق امیر
मोहम्मद अयूब और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि यतीम बच्चों के हुकूक से मुतालिक इस्लाम ने बहुत कुछ बताया है। जो यतीम की कफालत और उसकी परवरिश करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि फलाही इदारे का आरफिल्म स्पोर्ट प्रोग्राम 35 जिलों और 121 यूनियन काउंसिलों में 8000 बच्चों को तालीम, सेहत और खुराक की मद में मुआविनत कर रहा है। हब में सिंध बलूचिस्तान के संगम कौमी शाहरा पर शहीद SHO हयात नफीस के नाम से मंसूब पुलिस चेक पोस्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। पुलिस चेक पोस्ट का इफ्तिताह SSP लसबेला जिया मंदोखेल ने किया। चेक पोस्ट को शहीद SHO हयात नफीस के नाम से मंसूब किया गया है। इफ्तिताह के बाद SSP लसबेला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हब शहर सिंध बलूचिस्तान के संगम और कौमी शाहरा पर वाक़ है, जहाँ से रोजाना हजारों की तादाद में गाड़ियाँ न सिर्फ सिंध बलूचिस्तान के लिए गुजरती हैं बल्कि ईरान अफगानिस्तान के लिए भी यही रास्ता जाता है। उनका यह कहना था कि चेक पोस्ट कायम करने का मकसद जराइम पेशा अफराद और गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। इस मौके पर मुख्तलिफ थानों के SHOs और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।